تو پہلے ایک کام کرتے ہیں نا, اپنے دیکھنے والے کو سلام کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب میرے بچوں, میں آپ لوگوں کو ایک سچا قصہ اللہ کی کتاب سے سناؤں, اور لوگوں کے لیے بھی, آپ لوگوں کے لیے بھی. ٹھیک, وہی موسیٰ علیہ السلام اور جادوگر کا قصہ میں اپنے بچوں کو بھی, اور ہمارے اور جو کا نام ہے بھائی اور بہن اور ہمارے چھوٹے چھوٹے جو ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو, اس کے لیے سنا دیتا ہوں. تو میرے بچوں, موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں. یہ تو آپ صرف سنتے جائیں, آپ تھوڑا سا جب بڑے ہو جائیں گے آپ لوگ, تو نبی کون ہوتا, رسول کون ہوتا, اللہ کیا ہے, یہ سارا کچھ معلوم ہو جائے گا. جیسے بتایا نا پہلے آپ لوگ کو, کہ اللہ وہ ہے جو اتنا بڑا آسمان بنایا, اور جو اتنا بڑا آسمان بنائے اس کا ہاتھ تو ہو نہیں سکتا. جس کا ہاتھ ہوگا وہ اتنا بڑا آسمان نہیں بنا پائے گا. جیسے میں نہیں بنا سکتا, آپ لوگ نہیں بنا سکتے. تو جس نے بنایا اس کا ہاتھ نہیں, یعنی وہ آدمی کی طرح نہیں ہے. نہیں, وہ اللہ ہی ہے جس نے ساری دنیا کو بنایا, ہمیں پیدا بھی کیا اللہ نے. تو موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آپ لوگوں کو سناتا چلوں. اس نے کیا کیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اللہ نے بھیجا کہ وہ بدمعاش ہو گیا, سرکس ہو گیا ہے, جاؤ اللہ کی کا نام ہے ڈر دکھاؤ اس کو. تو موسیٰ علیہ السلام آئے تو کہا اللہ سے ڈر, اللہ کے آگے اللہ کو مان. صاف دکھ رہے ہو بچوں میرے, بیٹھے رہو. تو موسیٰ وہ فرعون نے کیا کیا, مکاری کرنا شروع کیا, کیونکہ فرعون خود بھی جادوگر تھا, اور جادوگروں کی ایک جماعت لے کے یعنی بھیڑ بنائے بیٹھا, بھیڑ بھی اس کے پاس تھی. تو کیا ہوا کہ جب بات جھگڑا پہ آ گئی, بات لڑائی پہ آ گئی, تو بات ایسے نہیں مانی. تو فرعون بولا یہ جادوگر ہے. جادو تو آپ لوگ کو اچھا سمجھ میں آتا ہوگا کہ جادو کس کو کہتے ہیں, ہے کہ نہیں, ابھی بچے ہو. تو میلے کے دن اس نے جادوگروں کو اکٹھا کیا. وہی چیز میں قرآن کریم سے دکھائی دیتا ہوں آپ لوگ کو اور میرے بچوں کو بھی. آج یہ جو ساتھ میں بیٹھے ہیں, کل یہی چیز ان کے دل میں داخل ہو جائے گی. تو میرے بچے جب اللہ اس کے کا نام رسول اور اللہ کا کلام, اللہ کے قانون کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے, اس لیے میں اپنے بچوں کو لے کے بیٹھا ہوں. تو سنا ہی دیتا ہوں میرے بچوں آپ لوگوں کو. جب جادوگر اکٹھا ہو گئے, ادھر اللہ کا نبی موسیٰ علیہ السلام, تو اپنا داؤ پکا کر لو, پھر پرا باندھ کر آؤ. اور آج اب آپ لوگ سنتے رہیں, ابھی ہم اس کا وضاحت کریں گے, آپ لوگ کے سامنے بتائیں گے کیا ہوا. تو کیا ہوا, اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا. بولے اے موسیٰ, یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. یہ کون نہیں جانتا موسیٰ علیہ السلام, یہ جو کا نام ہے یہ ان کا عصا, ان کی لاٹھی. بولے آپ پہلے جادو دکھاؤ گے یا پہلے ہم جادو دکھائیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا پہلے آپ ہی جادو دکھاؤ. کیا, یا ہم پہلے ڈالیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا بلکہ تم ہی ڈالو. جبھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے
जादू के जोर से उनके ख्याल में दौड़ती मालूम हुई, तो अपने जी में मूसा अलैहिस्सलाम ने खौफ पाया। हमने फरमाया, डर नहीं, बेशक तू ही गालिब रहेगा। गालिब का मतलब होता है तू ही जीतेगा। तो थोड़ा सा आप लोग को बताता चलूं, जादूगर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि या तो जैसे जादूगरों ने कहा कि मूसा पहले आप जादू दिखाओगे कि पहले मैं, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा पहले आप ही दिखाओ, ठीक। तो जादूगरों ने क्या किया, रस्सी बनाया, रस्सी बना के एक घेरा था, जैसे ऐसे गोल बनाकर लाइन बनाया, इसके अंदर ही जादू, जैसे मदारी दिखाने वाले आते हैं ना इधर और डमरू लेके ऐसे मदारी दिखाते हैं, तो उसमें डब्बे में भर के चॉकलेट बना देते हैं, ये बना देते हैं, बनाते हैं ना, वो उधर आता डमरू बजाने के लिए। ये जादू के जोर से ये सब ऐसा नजरबंदी की जोर से बनाते हैं। तो क्या हुआ, जादूगरों ने रस्सी बना के उस घेरे में डाला। जब रस्सी डाला तो वो सांप बन गई, सांप बन के दौड़ने लगी जादूगरों की निगाह में, और जो मेला लगा था लोगों को देखने वालों के भी निगाह में। जैसे आप लोग बैठ के देखते रहते हो, वो चॉकलेट बनाता, ऐसे आग जलाता डब्बे में, उसको बंद करके ऐसे खोलता है तो उसमें चॉकलेट निकलता है, निकलता कि नहीं निकलता। तो ऐसे उन लोगों ने रस्सी बना के जब उस ये घेरे जैसा गोल लाइन बनाया था, उसके अंदर जब वो रस्सी बना के फेंका तो वो सांप बन गई, दौड़ने लगी। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने थोड़ा सा उनको डर मालूम हुआ, तो अल्लाह ने फरमाया, हमने फरमाया, डर नहीं, बेशक तू ही गालिब रहेगा। गालिब का मतलब होता है तू ही जीतेगा, जादूगरों के सामने तू ही जीतेगा, डरना नहीं। और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है। तुम्हारा दाहिना हाथ कौन सा है, तुम अपना दाहिना हाथ उठाओ, सारे अपना दाहिना हाथ उठाओ। दाहिना हाथ मालूम कौन सा है बिटिया, तुझे मालूम है? तू अपना दाहिना हाथ उठा, दाहिना हाथ अपना ऊपर कर। तुझे नहीं मालूम दाहिना हाथ कौन सा है? तेरा दाहिना हाथ कौन सा, सीधा हाथ कौन? ये सीधा हाथ ऊपर कर बाबू, सीधा हाथ ऊपर कर, सीधा हाथ ऊपर कर, ये है दाहिना हाथ। तो अल्लाह ने क्या कहा, और डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है। तो मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी थी, आसा बोलते हैं, अरबी में आसा बोलते हैं, हिंदी में लाठी बोलते हैं, डंडा। और उनकी बनावट को निगल जाएगा वो जो बनाकर लाए हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या किया, जो उनके हाथ में लाठी थी, आसा डंडा, उन्होंने उस घेरे में डाल दिया जहां वो जादूगरों का सांप दौड़ रहा था। वो तो जादूगर का फरेब है, यानी धोखा, और जादूगर का भला नहीं होता, वो कभी कामयाब नहीं होते। क्यों? अल्लाह कह रहा है, जब अल्लाह के जादूगर का भला नहीं होता, तो ये बात तो हक है कि दुनिया में जो रब को नहीं मानते, जो अल्लाह को नहीं मानते, उनको भी अल्लाह बोले तो रोजी देता, खाना देता है। तो इन मक्कारों को क्यों नहीं देगा, ये मेरा सवाल है। लोग कहते हैं ना, तो जो अल्लाह को एक नहीं मानता उसको भी अल्लाह खाना देता है, इन मक्कारों और फरेबों को नहीं देगा, ये कैसे हो सकता है? अच्छा, तो कहीं आवे, जादूगर कहीं भी चला जाए, उसका भला नहीं होगा। जब अल्लाह ने कह दिया यही हक है, इसको कोई माइकलाल। हाँ, ये तो है कि जादू असर करता है, ऐसी कोई बात नहीं है,
मगर ना वो दुनिया में कामयाब हो सकते, ना मरने के बाद कामयाब हो सकते। तो सब जादूगर सजदे में गिर गए। क्यों गिरे? जादूगर सजदे में क्यों गिरे? कि उन्होंने रस्सी बनाई थी, उन्होंने रस्सी बनाकर डाला था, तो सिर्फ उनकी निगाह में ये था कि ये सांप दौड़ रहा है, और लोगों की निगाह में। और जब मूसा और वो जो ये गोले में जो घेरे के अंदर डाले थे, तो वो जादूगरों को रस्सी नजर आ रही थी, देखने वालों को सांप नजर आ रहा था, देखने वालों को सांप नजर आ रहा था, उन जादूगरों को रस्सी नजर आ रही थी, क्योंकि जादू तो रस्सी तो उन्होंने ही डाली थी। मगर जब अल्लाह ने कहा डाल तो दे जो तेरे दाहिने हाथ में है, यानी मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाठी थी, अरबी में आसा कहते हैं उसको, डाल तो दे जो तेरे हाथ में। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उस घेरे में अपनी आसा, अपने लाठी या अपने डंडे को जब उसमें डाला, तो वो सांप बन गया। अजदहा, अजदहा बहुत बड़ा सांप होता है, तो वो सांप बन गया, उनकी रस्सियों को खा गया। जो जादूगरों ने रस्सी डाला था उनकी रस्सियों को खा गया। तो जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना लाठी उस घेरे में डाला था, वो असल में सांप बना, क्योंकि अल्लाह ने उस लाठी को सांप बना दिया। कैसे बनाया? मैं बेटी उस दिन आप लोगों को बताया था ना, कि जब अल्लाह किसी काम को, सूरह यासीन की आखिरी आयत करीमा, जब अल्लाह किसी काम को करने का इरादा करता है, वो फौरन हो जाती है, वो सिर्फ इतना कह दे कि हो जा, वो फौरन हो जाती है। तो उस लाठी को अल्लाह ने कहा कि ऐ लाठी तू सांप बन जा, वो तुरंत सांप बन गई। उनकी रस्सियों को, जादूगरों को रस्सियों को खा गई। तो जादूगर देख रहे थे कि हमारी रस्सी है, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, मगर वो लाठी सांप बन गई। अब जादूगरों ने देखा, जैसे ये मोबाइल है, मैं तो जान रहा हूँ कि ये मोबाइल है, मेरी मोबाइल है, मगर इसी को मैं जादू के जोर से कुछ और बना दूं, तो मेरी निगाह में ये मोबाइल ही नजर आएगी। मगर जादू के जोर पे तुम लोग को, अगर मैं बोलूंगा ये कबूतर है, तो जादू के जोर पे तुम लोग को कबूतर नजर आएगी, मुझे मोबाइल ही नजर आएगी, क्योंकि मैंने ही रखा, सिर्फ जादू के जोर से मैंने इसको बदल दिया। तो उन जादूगरों को वो रस्सी रस्सी ही नजर आ रही थी, मगर जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली, डंडा डाला उस घेरे में, तो वो सांप बन गया, अल्लाह ने उसको सांप बना दिया। तो जादूगरों के समझ में आया, नहीं ये है कोई ताकत जिसने इस लाठी को सांप बना दिया, हमारी रस्सियों को सांप नहीं बनाया। यानी कोई ताकत है जिसने इस लाठी को सांप बनाया। हम जो रस्सियां डाले हैं वो उस घेरे में रस्सी ही नजर आ रही है, मगर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी डाली तो वो सांप बन गई, यानी कि ये सांप बनाने वाला कोई है। तब उसके बाद तो सब जादूगर सजदे में सब जादूगर सजदे में गिरा लिए गए, बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है, यानी अल्लाह ताला। क्यों? उन जादूगरों को मालूम पड़ गया कि है कोई जात जिसने इस लाठी को सांप बना दिया। जादूगर अल्लाह के आगे सजदा कर गए, बोले हम ईमान लाए, कलमा पड़ गए, हम ईमान लाए, बोले हम उस पर ईमान लाए जो हारून और मूसा का रब है। ये हारून कौन है? हारून अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के भाई हैं। तो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सारे के सारे कलमा पड़ गए, अब मुसलमान हो गए। तो ये थी छोटी सी गुफ्तगू जो मैं बोला आप लोगों को दिखाता चलूं, अपने सुनने वालों को भी। तो लास्ट में बात जो रह न जाए वो ये है कि सबसे खुशी की बात ये है मेरे बच्चों कि सब्सक्राइब करने वालों की कमी बहुत है।
तो जिस तरीके से ये कह दें कि अगर वीडियो पसंद आए तो क्या करना, हाँ, क्यों? यही बच्चे अल्लाह के आगे अगर दुआ मांगे, बाप अगर बैठ कर बोले मेरे बच्चों या अल्लाह या रहमान या रहीम को, अर्श का रहमान अर्श का खालिक, उसकी रहमतें जो उसमें आ जाती हैं। तो अल्लाह ने मुसलमानों को बनाया ही रहम दिल, अल्लाह ने मोमिनों को बनाया ही नरम दिल। तो वीडियो पसंद आए तो क्या करो, सब्सक्राइब कर दो।